Firstly, thank you. The music is amazing. Already playing it on loop, and I'm so happy to be here. We were not expecting it to be this great and amazing, like a concert. So thank you so much for that. And I would like to know, when the music was created, you were a part of it, like Sachit and Parampara were mentioning. At any moment, you were like, "Arey, teen char gaane aur hone chahiye. This is not enough. We need more." Hi, first of all, how are you? And thank you so much for all the wonderful words about the music. And all the credit should go to Sachet and Parampara. And even this whole, live concert vibe, which I was feeling like, मुझे नींद से उठा के कोई ले आया है and I'm like बहुत मजा आ रहा है लेकिन I was not prepared for this, you know. So thank you for that. It was an amazing little thing, and it was so much fun to see everybody enjoying themselves and participating. So thank you all for being a part of this really cool little evening that we're having. जितनी मिल रही है खुशी से ले लो. You never know what's going to happen tomorrow. Let's enjoy it while we can, right? True. The thing with music and dances is that I feel that they are a wonderful part of movies, but they should never intrude in the process of storytelling. So in fact, I haven't, for example, danced for over 6 years now in a movie. I haven't. Because I used to feel in the first part of my career that a lot of people would force a song or a situation into the film which was not, which was not right for the film, but just for effect. And so music also in this film being a sports drama and a human drama, there was very limited scope for music. But within that limited scope, we wanted to create songs that will bring a smile to people's face, that will remind people of the film, because the lyrics and the music of the film are pretty much the first feeling that you get when you watch a film trailer. The sound really stays with you. And Mehram was that song for us, Mehram Tu Hi Hai Mera. I don't know how many of you have paid attention to the lyrics, but Mehram is actually, usually you're used to listening to a song which is all about like, we can do it, we are going to win, that kind. But this is actually a love ballad. It's a love ballad between man and destiny. And he's telling his destiny that I'm okay to accept everything you give me, but I want you to come here and live with me to understand how I feel when you throw all those difficulties at me. So I think it's a very beautiful interpretation to what a person feels when they lose, what a person feels when they struggle, and when they don't get what they work so hard for. And how difficult it is to be in that situation. And I've been there, I've been in that situation so many times where I have felt disappointed and emotional and broken and, lost. I'm sure all of us feel like that. So Mehram is that song for all of us to make us believe, because it's a very uplifting song. And that is what's true for this film as well. That it will never run. कई बार क्या होता है, हम फिल्में बनाते हैं, हम फिल्मों में सिर्फ ना खुशी 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 दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग तो देखना ही नहीं चाहते. ऐसा नहीं होता. लोग हर चीज़ देखना चाहते हैं, लेकिन they want to feel uplifted. You don't want to depress them. You don't want them to be sad, And that's the thing with this film and the music of this film, that it's very emotional, it's very intense, it's very passionate, but it's uplifting. So we wanted Mehram to be a song which, even though it's talking about things which are, emotional, it should make you feel, uplifted and make you feel motivated. And that's what the film is about, and that's what Mehram's about, and that's what the music of this film is about. Especially Jind Meri Hai also. It's a very hopeful song. It's a song full of hope and beautiful thoughts. Relationship between a son and a father. So, after we become parents, after you became a father, I mean, we have seen your journey. We push harder, So is that with you as well? When your first baby was born, then your second baby was born, you're already successful actor, but now is it like, I want to push harder, I want to, already you are at the top, but it's like, what beyond? Yeah, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप पेरेंट बन जाते हो तो उससे पहले आप अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हो. यू वांट टू सी योर सेल्फ अ सर्टन वे. यू हैव अ ड्रीम फॉर योर सेल्फ कि मैं एक दिन यहाँ पहुँचूंगा, मैं एक दिन ऐसे करूँगा. आफ्टर यू हैव योर चिल्ड्रन, मेरे मन में वो थॉट चेंज हो गया है कि हाउ विल माई चिल्ड्रन सी मी, how will they feel about me 10 years down the line, 15 years down the line, when what I do today, I will be reminded of that 15 years down the line, 20 years down the line. जब वो बड़े हो जाएंगे, when they'll be adults and they look back and see me
at their age or at an age which they are going to reach, will I be a good example? Will I be somebody they look at and you know, because बच्चे बहुत impressionable होते हैं, you know, तो अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो ना तो बच्चे उसको emulate करते हैं. It becomes very important as a parent to, you know, make them see the right things. तो मेरे मन में हमेशा यही होता है that, you know, I don't give a wrong example to my kids. I hope that they take away good things from me. And you can't, you know, you can't become perfect. We're all imperfect. Or being a parent is रोज सीखना पड़ता है, you know, to be a parent. And you really feel every day that I didn't know I was signing up for this. बड़ा मुश्किल होता है. But your heart is with them and how they see you becomes very very important. तो इस फिल्म के अंदर एक लाइन भी है, you know, जब अर्जुन कहता है कि अपने बेटे की नज़रों में मैं इससे एक कतरा भी कम मैं होने नहीं देंगा, you know. And I could feel it so deeply because I know how much it means to me, how my children look at me. It's so important for me, you know. So they lift your spirit. Yeah, they are my spirit. I tell my son and my daughter that, you know, when my daughter was born, I used to say, you're in my heart. And then I had two, so I was like, abhi मैं heart को divide कैसे करूँ? So I told her, I said, you know, you have the right side of my heart and Zen has the left side of my heart. So they're in my heart all the time, you know. Thank you. Everyone has a dream. We are talking about your dreams. So everyone has a dream of marathon, Oscar, or Filmfare, you know, or something like that. But is there any dream which is incomplete for you and you journey of the dream? I think life is a dream, man. And you know, the beauty about life is till the day you live it, it's incomplete. And you can fulfill whatever you want to do. It's never too late. You can take your life and mess it up completely and be at the lowest point in your life. But you know what the beauty is? Till you're alive, you can turn that around and walk right back into the middle of life and do the best that you can. And I think whatever age you're at, if you just have that kind of a spirit and that kind of a thought, that if I decide to start moving in the right direction today, I'll get there. You know, and life's not easy. It's full of so many challenges, and it's long. You know, you have 365 days in a year. Every day you wake up, and you have to live that life. Why waste it? Live it the way you want to live it. Be a part of your own life. A lot of the times, you know, time निकलता रहता है, जिंदगी चलती रहती है. हमें लगता है हाँ बस हो रहा है, and then sometime we realize we didn't do anything with all this time, and then you don't have any time left. You know, I feel like that. मेरे यू नो थोड़े थोड़े बाल मेरे ग्रे होने जब शुरू हुए थे तो मेरे को ऐसे देख के लगता है लाइक शिट मैन आई गॉट सम ग्रे हेयर नाउ मैन द बेस्ट इयर्स ऑफ माई लाइफ आर दे बिहाइंड मी सो यू फील वेरी मोटिवेटेड द यंगर यू आर द लेस यू रिस्पेक्ट टाइम द ओल्डर यू गेट द मोर यू रिस्पेक्ट टाइम बिकॉज यू नो यू हैव लेस ऑफ इट दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर But is there any dream which is not completed yet or you're yet to achieve? अभी तो पार्टी शुरू हुई है Mrinal, and what about you? Meena? I want to be known as an all-rounder, a versatile actress, and जो किताब है वो बस पाना एक दिन. I want to explore all the kinds of genre and roles, and you know, that's my dream. Every day I wake up, आज कुछ अलग करना है. But I don't know what, so I'm still looking for it. I'm still working hard. I'm making sure that I take one day at a time. There are days where I want to give up, but having said that, versatile, that's what I want to be known as. So I'm just working towards it. Thank you. शायद आपने अपना अभी तक ड्रीम बताया नहीं. I'm assuming कि आप बताने में बिलीव नहीं करते, अचीव करने में बिलीव करते. I would like to end. नहीं मेरा ड्रीम ना ऐसा मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कोई भी है मुझे वो चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए यू शुड लिव योर लाइफ ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ इक्वली पैशनेटली जब आप अपनी फैमिली के साथ हैं उनको अपना पूरा टाइम दीजिए भूल जाइए काम के बारे में जब आप काम में हैं तो काम में मगन रहिए अगर आप यू नो ट्रैवल कर रहे हैं तो दुनिया देखिए अगर आप घर पे बैठे हैं तो अपने बारे में अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचिए You know, everything in life is an opportunity. So I just want to live life to the fullest and feel that I experienced everything that I could. That's my dream. That's really my dream. Can I add something? It's my To my dream or your dream? My dream. You can add to mine also. I'm melting. मैं भूल गई. क्या बोल रही थी मैं? हमारा ड्रीम है ना 31 दिसंबर साथ में ही तो है वो. It is our dream and ले वो रो रही है.
लोचन रोने लगा, मेरी बहन रोने लग गई। लड़की काम ये वाली जो भी काम करती है, इसके पास एक बहन है जो इसको देख के बस रोती रहती है। आई विश मेरा भी एक सिबलिंग होता है। ईशान तो एब्स बनाते रहता है अपने पूरे टाइम। मेरा भी एक सिबलिंग होता है जो पूरे टाइम मेरे पास रहता, कितना अच्छा कर रहा है तू, हैं? वो मुझे क्रिटिसाइज करते रहता है, भाई आई थिंक यू नीड टू यू नो दिस फिल्म थोड़ा इंटेंस है वो। बट आई मिस हिम इन ऑल दीज मोमेंट्स, यू नो, आई मिस हिम। या तो आपसे जानना चाहूँगी कि कबीर सिंह वाली जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा दे रहा है गाना में भी, कहीं ना कहीं हमने देखा। वॉज देयर एनीथिंग इन टू योर माइंड व्हेन यू ऑल वर क्रिएटिंग द म्यूज़िक कि हमें मतलब वैसा कुछ वाइब देना है? एक्चुअली अगर आप इस फिल्म का जॉनर देखें और अगर आप इस फिल्म की क्या है, अभी आप लोगों ने थोड़े बहुत प्रोमोज देखे हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक फ़िल्म की छाप जो है वो रह जाती है। तो मुझे भी ये फ़नी लग रहा है कि यार लोगों को ऐसे क्यों लग रहा है, बट देन इट्स अ रियली बिग कॉम्प्लीमेंट कि शायद पीपल स्टिल हैव दैट कनेक्शन विद द कैरेक्टर ऑफ कबीर, यू नो। सो उसकी झलक, बिकॉज हूँ तो मैं ही, तो कहीं ना कहीं तो झलक दिख जाएगी, यू नो, चाहे मैंने अलग कपड़े पहने हो, बट फेस तो वही है। सो एक्चुअली इस फिल्म की ओरिजिनल फिल्म जो थी, हमारे जो सिलुएट्स हैं वो वैसे ही हैं और म्यूज़िक तो सचेत परंपरा की है, तो यू नो उनकी आवाज़ है और डेफिनेटली रॉक सॉन्ग है, यू नो। जैसे बेख्याली वाज आल्सो इन द जॉनर ऑफ अ रॉक सॉन्ग, महरम इज़ आल्सो इन द जॉनर ऑफ अ रॉक सॉन्ग। बट यू नो दोस्त, आई मीन U2 जैसे अगर आप देखिए उनकी रॉक म्यूज़िक होती है तो वो तो उसी तरह की म्यूज़िक पूरी ज़िंदगी बनाते हैं। माइकल जैक्सन की म्यूज़िक माइकल जैक्सन की लगती थी। तो यू नो एक फ्लेवर होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, एक स्पेस होती है जैसे आप कुछ क्रिएट करते हो, तो वो तो हमेशा रहता ही है। बट द इमोशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, द स्टोरी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, द कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी इज़, I mean, when I did this film, I was like, this is a complete 360 to what I have done because बहुत बैकफुटेड पर्सनैलिटी है इस कैरेक्टर की। बट हाँ, मैं नहीं चाहता था कि यू नो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो लाइफ में गिव अप कर चुके होते हैं, यू नो, और एक वो लोग होते हैं जो लाइफ जी रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर आग होती है। तो मैंने हमेशा यही सोचा था कि अर्जुन के अंदर आग तो बहुत होगी, नहीं तो वो इस उम्र में ऐसा थॉट सोच ही नहीं सकता, यू नो। लोग गिव अप कर देते हैं, दे आर वेरी पैसिव अबाउट देयर लाइफ। सो वो आग, वो इंटेंसिटी, वो पैशन इस कैरेक्टर में है और शायद वो इंटेंसिटी शायद कबीर सिंह के कैरेक्टर में भी फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस थी। सो मे बी दैट्स ड्राइंग सम सिमिलैरिटीज़। बट यू नो प्लीज़ इस फिल्म को मौका दीजिए, जब आप 2.5 घंटे की फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यू नो। तब तक तो वही यादें ताज़ा होंगी जो आपको अभी अभी आपके मन में हैं, या इफ़ यू आर कनेक्टेड विद समथिंग। बट द इंटेंशन वॉज नेवर टू डू एनीथिंग सिमिलर, बिकॉज जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नया करना है। मेक अ रीमेक, यानी ये ऑलरेडी साउथ में फिल्म बन चुकी है, तो हाउ तेलुगु बोलिए ना, आप साउथ बोलती हैं। तेलुगु में। सो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर एन आर्टिस्ट टू एक्ट इन दैट फिल्म, बिकॉज यू नो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ परसेप्शंस बन जाते हैं उस फिल्म को देखकर। तो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर एन आर्टिस्ट टू एक्ट इन सच फिल्म्स? यू नो, आई वुड लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर गौतम सर उसके लिए, क्योंकि जब उन्होंने मुझे कास्ट किया एज विद्या, उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि मृणाल, आप सारा नहीं है, विद्या है, तो आप इस कैरेक्टर को अपने हिसाब से प्ले करिए। तो जब आप सेट पर जाते हो, जब आपका डायरेक्टर आप पर इतना फेथ और उम्मीद लगाए, यू नो, व्हेन ही एक्सप्लेन्स यू एवरीथिंग, यू जस्ट फील लाइक यू आर प्लेइंग अ न्यू कैरेक्टर ऑल टुगेदर। येस, श्रद्धा और नानी दोनों ने दोनों कैरेक्टर्स को इतने बखूबी से उन्होंने प्ले किया है, तो उन्होंने ऑलरेडी बेंचमार्क वहाँ पे सेट किया था। बट हमारे डायरेक्टर सर गौतम सर ने, ही ऑलवेज टोल्ड मी, मृणाल कुछ प्रेशर नहीं है। समटाइम्स आई यूज्ड टू फील लाइक थोड़ा एनजाइटी हो जाती थी कि सर श्रद्धा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, हाउ विल आई बी एबल टू डू इट, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट। ही सेड जस्ट रिलैक्स, दिस इज विद्या, नो वन हैज़ प्लेड विद्या बिफोर, सो यू डिसाइड हाउ यू वॉन्ट टू डू इट। मैं आपको इनपुट्स देता रहूँगा ऑब्वियसली, एंड यू नो इट वॉज सो लवली टू हैव शाहिद्स thoughts over what he thinks Vidya is like. My director, be my writer, you know, Siddharth and Garima. तो उनसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ पूछती रहती थी हमेशा विद्या के बारे में. So Vidya is an amalgamation of what my writers think, what my co-actor think, and what my director thinks. So एक चीज़ होती है ना, मैथ्स के टेक्स्ट बुक में हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला मतलब है, लेकिन एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए. सो कभी कभी यू नो कोविड के दौरान जब
6-7 महीने का गैप हो चुका था, तो इट वाज वेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं, तो इट वाज रियली नाइस टू हैव अ तेलुगु वर्जन ऑफ इट टू गो बैक एंड रीलिव द मोमेंट्स, और कहीं ना कहीं मुझे इट हेल्प मी, इट रियली हेल्प मी, सो I did not feel that pressure as much. This question, the last film you acted in was Kabir Singh, which was a remake of a Telugu film. And now after a big gap, we are seeing you in a remake of a Telugu film, Jersey. So, एक question ये है कि do you have a kind of a strike a balance between doing the films by selecting the bang on target, the potential hit films, and number two, when you as an actor act in these films, in what way you change your character compared to the original character in the original film? देखिए पहले तो अगर मुझे नंबर्स ही चेज़ करने होते तो मैं वो वाली फिल्में करता जिन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में 150 करोड़ का बिज़नेस किया है या इस तरह का बिज़नेस किया है। ये वो फिल्में नहीं है एक्चुअली। अर्जुन रेड्डी न्यूकमर के लिए एक सक्सेसफुल फिल्म थी, बट इट हैड मॉडरेट नंबर्स कंपेयर टू अदर बिगर फिल्म्स। मैं फिल्में कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करता हूँ, यू नो। और मैंने जब कबीर सिंह की तो उससे पहले मैंने कभी कोई रीमेक नहीं की थी। लेकिन जैसे यू नो जब हम हैदर बना रहे थे, इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ हैमलेट, यू नो। और कई साल पहले शेक्सपियर ने कहा था कि यू नो देयर इज़ नो स्टोरी दैट हैज़न्ट बीन टोल्ड बिफोर, यू नो। सो शायद ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो आप किसी चीज़ को इंटेलेक्चुअली जब सोचते हो उसके बारे में, तो आप उसको इंटेलेक्चुअली देखते हो, यू नो। वो आपकी जगह है, वो आपका काम है। एज एन आर्टिस्ट मुझे चीज़ों को बहुत ओपननेस और फ्लूइडिटी के साथ देखना पसंद है। मुझे ये नहीं अच्छा लगता कोई मुझसे कहे ये सही है और ये गलत है। कौन हो आप मुझे बोलने वाले क्या सही है क्या गलत है? अच्छा लगा, मज़ा आया, दिल को छुआ, मेरे लिए फिल्में उतनी हैं। यू नो जब मार्टिन स्कॉर्सेसी डिपार्टेड कर सकते हैं आफ्टर इन्फर्नल अफेयर्स, तो मैं कौन हूँ यार इतना अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए। ओह आई डोंट वांट टू डू एनी रीमेक्स। अरे यार अच्छी कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं। और मैंने जब ये दो फिल्में देखी थी, रियली लाइक हिट मी हार्ड, यू नो। तो मुझे ऐसा लगा एज अ व्यूअर अगर मैं इस फिल्म को इन्जॉय कर रहा हूँ तो, और मुझे एज एन एक्टर अगर ये रोल बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, तो आई विल बी लिमिटिंग माई सेल्फ बाय थिंकिंग लाइक दैट, यू नो। सो जो मुझे दिल को ऐसा लगता है कि मैं ये कहानी कहना चाहता हूँ, मैं वो फिल्म कर लेता हूँ। और एक्चुअली कबीर सिंह के बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ये फिल्म नेक्स्ट नहीं करूँ, क्योंकि मेरे मन में भी ये था यार 2 रीमेक्स यार, मैं नहीं यार। लेकिन मुझे कोई चीज़ इतनी अच्छी लगी नहीं जितनी अच्छी मुझे ये फिल्म लगी। और 3 महीने 4 महीने तक मैं सोचते ही रहा इस फिल्म के बारे में, एंड हाउ आई फेल्ट व्हेन आई सॉ द फिल्म। और इस फिल्म का जो मैसेज है, मैं चाहता था कि वो मैं शेयर कर सकूं लोगों के साथ। और अगर जैसे इस ऑडिटोरियम में 100-125 लोग बैठे हैं, वो अगर ये फिल्म देखें और इनमें से अगर 25 लोगों को भी वो फील हो जो मुझे फील हुआ, बिकॉज इट चेंज्ड मी फॉर एवर, जो इस फिल्म का मैसेज है, इट चेंज्ड मी फॉर एवर। अगर वो 25 लोगों को भी फील हो गया, मुझे लगेगा दैट आई डिड समथिंग अमेजिंग, यू नो। सो दोज वर माई रीजंस। मैं आई डोंट ट्राई टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। आई गो विथ हाउ आई फील। इफ आई लाइक समथिंग आई डू इट, एंड दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, you know, because I like to go with my instinct now. One question is for Aman, the producer. What kind of strategy you had for release of the film when you made Jersey? Because within a week of another film on cricket, 83, Jersey is going to hit the screen. So ये इसका डिसीजन था। इसका पूरा प्रेशर अमन के ऊपर है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे सब बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्रिकेट फिल्म नहीं है। Cricket is the character that he's playing, a cricketer, ex-cricketer, but film is about the heart. It's a human story, husband-wife की कहानी है, बाप बेटे की कहानी है, and he happens to be a cricketer. So we're not even, if you notice in the whole promotion and everything, हमने कहीं cricket नहीं बेचा है. Yes, he is a cricketer by profession, but that is not the film. And that's how we presented it throughout, and that's why we're not looking at it as another cricket film. And sorry, as an exhibitor, I want to add, we have really a lot of inquiries about Jersey. People have been writing us. ये आपने बैक स्टेज क्यों नहीं बोला? 7 दिन पहले एक आदमी कितना नर्वस होता है, पहले बता देते, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। When are we opening अब advance? मुझे एक ग्लास पानी पिलाओ, मैं रिलैक्स हो। ये सिनेपोलिस के हेड ऑफ प्रोग्रामिंग है, तो इनको भी खुद पता है भी ईच फिल्म गेट्स ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली और कभी पिच सेम नहीं होता है। फिल्म क्रिकेट पे बेस्ड है और आज एक फिल्म रिलीज हुई है 83, वो भी क्रिकेट पे बेस्ड है। सो आपसे जानना ये चाहूँगी कि क्रिकेट को लेकर आपके थॉट्स क्या हैं?
जी आपका सवाल 3 चीज़ें आपने पूछी. Yeah. आपका लास्ट पार्ट जो था इट्स काइंड ऑफ डिस्कनेक्टेड टू द फर्स्ट टू, बट आई विल गिव यू एन आंसर फॉर दैट Yeah, एज वेल. please. The promos of 83 are looking very, very nice, and I would myself love to go and see the film. It's about when India won the World Cup, and it's this journey that everybody would want to see. बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत अच्छी लग रही है. उसके एक हफ्ते बाद एक और फिल्म आ रही है जर्सी, जो हमने बनाई है, जो बहुत इमोशनल फिल्म है, और उसका बैकड्रॉप भी क्रिकेट है. तो लोग दोनों फिल्में जाके देखें, दोनों फिल्में एंजॉय करें. क्रिसमस पे भी लोग बाहर जाते हैं, न्यू ईयर पे भी बाहर जाते हैं. तो पीपल आर गोना स्टेप आउट, पीपल आर गोना वॉच मूवीज़. अगर फिल्म अच्छी होती है तो वो अपनी जगह ढूंढ लेती है, यू नो. तो अब ऐसा ही टाइम है, क्योंकि 2 साल से थिएटर्स काफ़ी देर के लिए बंद थे. तो बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं. कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी फिल्म रिलीज़ नहीं की इस डर से कि बड़ी सारी फिल्में साथ में आ रही हैं. बट आई थिंक अगर आप अपने प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं, और अगर आप पैशनेट हैं, और अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन है, तो यू विल बिलीव कि अगर एक हफ्ता ऑडियंस के पास है डिसाइड करने का कि उनको मेरी फिल्म कैसे लगती है, तो उसके बाद मेरे पहले कोई फिल्म आए, मेरे बाद कोई फिल्म आए, उसकी उसकी अपनी किस्मत है, हमारी फिल्म की अपनी किस्मत है. सो वी विश 83 ऑल द बेस्ट, एंड वी रियली विश दैट इट डज वेल. बट 1 week later we are releasing, and we hope we do amazingly well too. या शाहिद, आपसे जानना चाहूंगी कि न्यू ईयर प्लान क्या है आपके, और क्या कुछ न्यू सेट आप करने वाले हैं गोल को लेकर? What New Year goals do I have? या I only want to hear New Year sixes, madam. गोल तो फुटबॉल में होता है, अभी हम क्रिकेट के जोन में हैं. Yeah. All right. You got your answer. शायद एक्चुअली एक सरप्राइज आपके और मृणाल के लिए. अभी आप किस्मत की बात कर रहे थे, तो देयर इज डू यू लाइक सरप्राइजेस? You love I surprises? don't like surprises. I can promise ये वाला पसंद आएगा. So आपका एक फैन है बहुत बड़े. नैतिक जैन, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? सो बेसिकली इन्होंने आपका और मृणाल का एक बहुत ही खूबसूरत स्केच बनाया है, एंड ही एब्सोल्युटली अडोर्स द टू ऑफ यू. सो वी थॉट दैट ये सरप्राइज आज हम आपको सबके सामने देंगे. Round of applause, guys. Come on. That's wonderful. That's Thank you, Naitik. really, really sweet. Just so that we can show it. Why don't you come, Runal? You can hold it. And Naitik, आप भी आओ ना. आप come in the middle. Come in the middle. आगे आ जाओ. That's really, really very nice. Thank you so much, Naitik. We really appreciate it. Naitik, thank you. हाँ, हम रख लेंगे, वापस नहीं देंगे. नैतिक अच्छा, रुको. नैतिक, लेकिन तूने एक ही बनाया, तो क्या करें, काट दें हम लोग बीच में से? I know it. हाँ, मृणाल रखे कि मैं रखूँ? मैं आपका रख लूंगी, आप मेरा रख लेना. हम every week हम exchange करेंगे. But thank you so beautiful. much. It's really, really nice. Thank you so much, Naitik. It's wonderful. Thank you, Naitik. Thank you. अच्छा नैतिक, आई नो तुम्हें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा शाहिद और मृणाल से मिलने का. सो शाहिद, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव हिम अ सरप्राइज Yes, बैक of एंड course. साइन अ of course, जर्सी of फॉर course, हिम. Of course. Absolutely, I would love to do that. अरे वाह. नैतिक, मम्मी को बोल देना धोए नहीं. All right. क्या बात है. All right. Thank you so much, Naitik, for being here with us. And शायद I think अब आपको surprises पसंद होंगे. So there's the last surprise that we have for you. हर्षिता, किधर हो? हर्षिता खेमचंदानी जी, ये आपकी इतनी बड़ी फैन है, और आई थिंक ये सचेत परंपरा को भी बहुत कंपटीशन देना चाहती हैं आज. शी वाज लाइक कि मैं परंपरा कोई सारा फैंडम क्यों लेने दूं, मैं भी गाती हूँ. शी हैज प्रिपेयर्ड अ स्पेशल सॉन्ग फॉर बोथ ऑफ यू. कैन वी हैव हर्षिता?
And I would request Sachet Parampara to stay back here so that we Thought can you have the saying photo go op. back. No, to stay back so that we can have the photo op with all of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Online bechna mata. All right. So you guys can have the photo op here. But we would request Shahid and Mrinal to stay back here because we have some winners who would love to get pictures done with you. So please, 5 more minutes. The winners of the Jersey of Dreams contest. Can we have the winners here, please? Thank you guys for participating in the Jersey of the Dreams contest. Bye. All right, जिनका picture हो गया है, I would request you to please exit. Okay, I want everybody to step a little back, please. एक एक करके, थोड़ा पीछे हो जाइए. You will get the pictures. आप थोड़ा सा दूर. Okay, hold on. Send them one by one. Okay, great. We know that you're winners and you will get the pictures. Just come one by one. Okay, don't worry. You will get the pictures. Anyone from Cinepolis? Please come. That's it. We are done, Aman. From Cinepolis. Ek picture. Varun, kitne jane? This is the final one. Varun, who are these?